গল্পের দর্পণ। এই দর্পণে প্রতিফলিত হবে নানা ধরনের হাসি, কান্না, প্রেম, ভয়, রোমাঞ্চ ও মায়াজালে ঘেরা অনেক গল্পগাথা। নমস্কার, গল্পের দর্পণে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। মা চলে গেলেন, বিসর্জন হলো মায়ের, তাই দশমী, শুভ বিজয়া দশমী। নিজস্ব কমিউনিকেশন গল্পের দর্পণের তরফ থেকে এবং আমি সুপ্রিয় সুদীপ ব্যানার্জির তরফ থেকে আমাদের সমস্ত শ্রোতা বন্ধু ও দর্শককে জানাই শুভ বিজয়ার অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অনেক ভালোবাসা। গল্পের দর্পণকে এভাবে আপনারা জড়িয়ে রাখুন, জড়িয়ে ধরুন আমাদের হাত, তবেই না গল্পের দর্পণ অগ্রসর হবে আগামীর পথে। আজকের গল্প সেই রকমই একজন মাকে নিয়ে। সব মারাই তার সন্তানদের জন্য কত কাজ করে, কত ত্যাগ স্বীকার করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরিণতি হয় সবকিছু বিসর্জন দিয়ে সন্তানের জন্য, স্বামীর জন্য নিজের সংসারকে টিকিয়ে রাখা। তাই এইরকমই এক নারীর গল্প শুনব আমরা আজকের গল্পে। এই গল্পে যারা কণ্ঠ দিয়েছেন আমি সুপ্রিয় সুদীপ ব্যানার্জি, স্বর্গীয় শ্রী ভক্তিপ্রসাদ অধিকারী, অনামিকা দেবী, প্রসেনজিৎ পাল, শেখর দাস, মৌসুমী চক্রবর্তী, অতনু মুখার্জি, তপস্যা সামন্ত, জয়জিৎ গাঙ্গুলি, শ্বেতা প্রামাণিক, পায়েল মোদক প্রমুখ। আসুন আজকের গল্প শুনুন, বিসর্জন। যে কোনো দেশের সব রাজ্যের সীমান্ত সংলগ্ন এলাকাগুলো হয় অপরাধপ্রবণ, কারণ অপরাধ করে এক রাজ্যের মানুষ অন্য রাজ্যে চলে যায়। সময়সীমা সীমিত হলেও অপরাধীদের কাছে সময় থেকে যায় প্রশাসনের চোখে ধুলো দেবার। বিহার ও বাংলার সীমান্তবর্তী একটি গ্রাম বীরগঞ্জ। মহাজন অধ্যুষিত গ্রামে নিয়মকানুন সবটাই মহাজনদের দ্বারা পরিচালিত। তার সঙ্গে এখানে রয়েছে জাতিভেদ। দেশের নাগরিক যতই সাক্ষরতার বড়াই করুক না কেন, স্বাক্ষর হয়েও মানসিকতার কোনো পরিবর্তন হয়নি। আজও মনের কোনো ছোট কোণে জাতপাত নিয়ে একটা কোন্দল থেকেই গেছে। আমার নাম অনিকেত। আমি কলকাতা থেকে আজ এই বীরগঞ্জে এসেছি এখানকার লোকের পুজো কেমন কাটে তার একটা প্রতিবেদন তৈরি করব বলে। কিন্তু বাস থেকে নামার পর কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। ও, ওই তো দূরে একজন বুড়ো ভদ্রলোক বসে আছেন। দাদু, বীরগঞ্জ গ্রামটা কোন দিকে? बीरगंज से तो एक कोस का पथ होगा बा। ये रास्ता पकड़ के सीधा चलते रहो, मिल जाएगा बीरगंज। ও ধন্যবাদ। तुम किस लिए बीरगंज जाना चाहते हो? আমি একজন রিপোর্টার, সংবাদ মাধ্যমে কাজ করি। अच्छा। দাদু আমি আসি। শহুরে শরীরে হাঁটার ক্লান্তি অপনোদন করতে অনিকেত বসল নদীর ঘাটে। তখন প্রায় সন্ধে। দূরে কোথাও ঢাক বাজছে। নদীর দুপাশে বালির চরে সাদা কাশফুলের ঝাড় জানান দিচ্ছে আগমনের। চুপ করে বসে সে ভাবছে এই গ্রামের রাতটা কোথায় কাটাবে। সামনে বহতা নদীর দিকে চোখ রেখে একটু আনমনা হয়েছে অনিকেত। এমন সময় এক দেহাতি মহিলা যেন তার পাশটিতে এসে দাঁড়ালো। হঠাৎ চমকে উঠলেও তার মনে হলো একই দিয়েই শুরু করি গ্রামের মানুষের পুজোর প্রতিবেদন। অনিকেত মহিলার দিকে তাকাতেই সে বলল, बाबूजी, मैं अनिमा, इस गांव की बहू। क्या
क्या आप इस गांव में नए हैं? हाँ, मैं एक न्यूज़पेपर का रिपोर्टर हूँ। इस गांव के लोग पूजा किस तरह से मनाते हैं ये कवर करने के लिए आया हूँ। इस गांव के लोगों की पूजा, दशहरा या पूजा कुछ भी हो, हम लोगों के मन में कोई उमंग पैदा नहीं करता, क्योंकि यहाँ के लोगों का जीवन महाजनों द्वारा पीड़ित है। खैर, सबकी बात तो मैं नहीं कह सकती, मगर हाँ, मेरी पूजा कैसे कटी, क्या आप जानना या सुनना चाहेंगे? जरूर। छोटा सा गांव वीरगंज और हमारा छोटा सा परिवार गांव के महाजनों द्वारा अत्याचारित एक असहाय पीड़ित परिवार, और उस पर मेरे पति भी अपंग। जन्मगत माने जन्म से ही? अरे नहीं नहीं, मेरी लाज बचाते हुए महाजनों द्वारा खून होते होते प्राणों से तो मेरे पति बच गए, पर उनके पैर चले गए। कैसे? কথা বলতে বলতে মাথা নিচু হয়ে গেল অনিবার। তারপর ছবির মতন ভেসে উঠল সেই দৃশ্য আমার চোখের সামনে। জল ভরার জন্য মাথায় কলসি নিয়ে মহাজনের বাড়ির উঠোনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে অনিমা। দাওয়ায় বসে রুদ্রপ্রসাদ ও তার চেলারা। তারপর अनिमा आ इधर आ बाबू, बाबू, नहीं नहीं बाबू, नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो बाबू, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो बाबू, छोड़ दो। रुद्रप्रसाद, অনিমা को छोड़ दो। হঠাৎই অনিমার স্বামী কোথা থেকে এসে হাজির হলো। नहीं छोड़ू तो স্ত্রীর ইজ্জত বাঁচাতে অনিমার স্বামী ছুটে এসে সমস্ত ভয়কে দূরে ফেলে এক লাথি কষালো রুদ্রপ্রসাদের মুখে। नहीं तो ले इतना बड़ा साहस पकड़ अनिमा को छोड़ दो। देख तेरे पैर का मैं क्या हासिल करता हूँ। देख नहीं 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 बाबूजी, पति, पत्नी, बेटा, बेटी और एक विधवा ननद, इन्हीं से मेरा संसार है। अपंग पति कुछ कमा भी तो नहीं सकते, जिसकी वजह से मुझे रातों के अंधेरे में रोड पर लॉरी वालों के पास उनकी खरोंचे सहने के लिए जाने पर मजबूर होना पड़ता है, जिससे कम से कम 500 से 800 रुपये संसार में चूल्हा जलाने के लिए मिल ही जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद भी मेरी बेटी चुन्नी की पढ़ाई, पति के लिए ताड़ी और मेरे बेटे अमिताभ का रघुनाथपुर के मेस का किराया, कॉलेज और ट्यूशन की फीस, इन सभी चीज़ों के लिए एक एक दिन बाद ही मुझे देह व्यापार के लिए निकलना पड़ता है बाबू। सुबह से चूल्हे पर चावल की हांडी में पानी डालकर बिठाई तो जाती है, लेकिन उतारी नहीं जाती, क्योंकि गीला चावल ही हम लोगों के दिन भर की खुराक है। हांडी कभी सूखती ही नहीं, पानी डाल कर दूसरे बेले की खुराक बढ़ा दी जाती है बाबू। यही हमारा जीवन है और यही हमारी गृहस्थी है। अब देखिए ना बाबू, सामने दुर्गा पूजा है, कम से कम एक एक सुतली तो बेटा बेटी के हाथ में देना ही पड़ेगा। इसीलिए अब मुझे हर रोज निकलना पड़ेगा। खुद के लिए बहुत ही आसान तरीका अपना लिया अनिमा। मेरा नाम चुन्नी है। अभी आप जिस अनिमा से मिले, मैं उनकी बेटी हूँ। चुन्नी एक नदी का नाम है
चंचलता जिसका स्वभाव है। मैं हूँ भी चंचल प्रकृति की, लेकिन प्रकाश नहीं कर पाती। अभी मैं बड़ी हूँ और समझदार भी। अपने परिवार की कमियों के बारे में कुछ भी कहना मुझे शोभा नहीं देता। अपने पिता के ऊपर गुस्सा तो बहुत आता है और दुख भी होता है उनकी दशा को देखकर। प्रधान के लालच से माँ की आबरू को बचाने में पिता पशुपति ने अपना एक पैर खो दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश जिस वजह से पिता आज अपाहिज हैं, माँ को आखिर उसी काम में जाना पड़ता है। शरीर और मन से धीरे धीरे कब मैं बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। प्यार भी अनजाने में कब हो गया पता ही नहीं चला। मास्टर काजल ही मेरा प्यार है। आंखों में रंगीन सपने काजल के साथ भागने का और अपना घर बसाने का, लेकिन जाने की बात सोचते ही माँ की बात से मन व्याकुल हो उठता है। अरे अरे माँ ने भी तो एक सुखी संसार की आशा की थी, लेकिन उन्हें क्या मिला? पिता मजदूर होने के बावजूद भी हमारे परिवार में कितनी शांति थी। पर अब तो उसी माँ को अपना शरीर बेचकर हमारा दिन गुजारा करना पड़ता है। मन उदास नहीं होता है ऐसा नहीं है, लेकिन काजल की बात सोचकर मैं सब भूल जाती हूँ। उसका प्यार मुझे रंगीन सपनों की दुनिया में ले जाता है। मेरा प्यार है तू, दिल की धड़कन तू, हर आश के निराश के हर पल के दर्पण तू। मेरा प्यार है तू, दिल की धड़कन तू, हर आश के निराश के हर पल के दर्पण तू। मेरा प्यार है तू। मेरी इकलौती बेटी है चुन्नी, लेकिन मैं महाजनों की बुरी नज़र से उसे बचा कर रखूंगी। अपनी तरह नरक का जीवन जीने नहीं दूंगी। मेरे घर का एकमात्र मर्द अभी मेरा बेटा अमिताभ है, इसीलिए अब तो मेरा सारा भरोसा उसी पर है। इस बार पूजा की छुट्टी में अमिताभ घर आने वाला है। अब उससे मैं अपनी कोई बात नहीं छुपाऊंगी, क्योंकि अब और इस नरक की पीड़ा को मैं सह नहीं पा रही हूँ। अब तो चुन्नी पर भी महाजन रुद्र प्रसाद की बुरी नज़र पड़ने लगी। राह चलते हुए लोग अब उसे परेशान करने लगे हैं। अमिताभ के आने पर अब मैं उसे भी उसके साथ शहर भेज दूंगी। लेकिन बाबू, नारी का जीवन तो खुले पन्ने की तरह होता है। हर राह चलता आदमी बस मौके की तलाश में रहता है। प्रतिरोध या प्रतिवाद कुछ भी करने का अधिकार मुझे नहीं है बाबू। मैं तो सबकी नज़रों में सिर्फ एक बिकने वाला सामान बनकर रह गई हूँ। फिर इस बिकने वाली औरत के बेटे बेटी का सम्मान कैसा? भूख ऐसी चीज़ है जो जात पात मान सम्मान इन सब चीज़ों को नहीं मानती बाबू। सामने जो भी आता है उसे चीड़ फाड़ कर भोग करके फेंक देता है। उस पर से इस लूले पति की झिकझिक, साला मरता भी नहीं। अरे मर जाता तो कम से कम एक पेट की खुराक तो बचती। और अब देखो सर पर ये ननद का बोझ। उसका पता नहीं क्या होगा। कितने दिनों तक अब इस परिवार की लाज बचा कर रख पाऊंगी।
मेरी तो अब कोई इज्जत ही नहीं है। मैं तो बदनाम हूँ। अब तो हालात ऐसे हैं बाबू कि एक मामूली आलू वाला भी बिना बदन में हाथ लगाए खरीदारी करने नहीं देता। अब और बर्दाश्त नहीं होता बाबू। इस बार मैं भी अमिताभ के साथ इस नरक से दूर चली जाऊंगी। सामने इलेक्शन है, क्या हुआ? सब चुपचाप बैठ के ऐसे क्या कर रहे हो? देखो अमिताभ, आज एक बात का पता चला। तुम्हारे ओपोनेंट पार्टी तुम्हें मारने की साजिश कर रहा है। अमिताभ, प्लीज तुम इलेक्शन से अपना नाम विथड्रॉ कर लो। हर बार हम लोगों को डरा धमका के वो लोग जीत जाते हैं। सुमिता, और कितने दिन हम ऐसे मुंह आंख मूंद के हम सब सहन करेंगे? ऐसे कैसे सुमिता, ऐसे कैसे? मैं किसी भी तरह अपना नाम नहीं विथड्रॉ करूंगा। तुम नहीं जानती मेरी माँ कैसे अपने आप को बेच के मुझे बड़ा कर रहा है। तुम सब बोलो, हमारे ये जिंदगी का क्या मतलब है? मैं डर डर के नहीं जीऊंगा। मुझे जीतना ही है, मुझे जीतना है, बस मुझे जीतना ही है। क्या तुम लोग मेरे साथ हो? अरे हमको पता है, क्या तुमको पता नहीं? क्या? डर के आगे जीत है। माँ दुर्गा का आगमन हुआ है। आज षष्ठी है। अरे परिवार के लिए कम से कम एक सुतली तो लाना ही होगा। पति के लिए लुंगी, बेटा के लिए गंजी यानी टी शर्ट, बेटी के लिए एक नाइटी, मेरे लिए कम से कम एक छापा साड़ी और ननद के लिए अरे बाबा ले देकर कम से कम 1,500-2 हजार रुपए का तो होगा ही। অনিমার কথা শুনতে শুনতে হাতের থেকে আর কলম সরছিল না। কি অবস্থা মহিলার! একমাত্র ছেলেই তো ভরসা তার। গতবারের পুজো তার এভাবেই কেটেছে, এভাবেই তার সপ্তমী গেল অমিতাভের পথ চেয়ে। কিন্তু অমিতাভও এলো না। অষ্টমীর দিন ভাগ্যহীনা অনিমা নতুন শাড়ি পরে পায়ে আলতা লাগিয়ে মায়ের দর্শনে গেল। মায়ের কাছে মানত করল যেন তার ছেলেকে একটা ভালো চাকরি পাইয়ে দেন। তাহলে এবারের পুজোয় মাকে একটা গরদের শাড়ি দেবে। ছোটবেলা থেকেই আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে যায় এই প্রলোভন দেখানোর কথা। এই প্রলোভনে মজে আমরা ঠাকুরদেরও প্রলোভন দেখাই, কিন্তু ঠাকুর কি সেই প্রলোভনে প্রলোভিত হয়? জানা নেই। সেই জন্যই বোধহয় সবার মানত পূর্ণ হয় না। অষ্টমী গেল। অনিমা আজ ঘরের কোণে নিভৃতে নোনতা জলে স্নান করছে। কেন এলো না অমিতাভ? পরশু মা চলে যাবে, তাই আগামীকাল একমাত্র হাতে আছে। জানা নেই সে আসবে কিনা। তবুও আশা তো করতেই পারে। মা তো, তার চোখের কোণে স্নেহ মমতা সবই আছে। হোক না সে নষ্ট। क्या हुआ? आज मुझे प्रधान के लड़के ने मेरे दुपट्टे पे हाथ डाला। काजल, ये जिंदगी से मुझे ले चलो। मैं और इस नरक में जी नहीं सकती। मैं अगर कहूँ कि आज ही मेरे साथ चलो, तो तुम मुझे विश्वास करके मेरे साथ चलोगे? लेकिन मेरी माँ का क्या होगा? चुननी, आज तुम्हें चुनना है। कौन सी हाथ तुम थमोगे?
जियोगे या इस नरक में मरोगे? मुझे जीना है काजल, मुझे जीना है। मुझे तुम ले चलो, मुझे तुम ले चलो, मुझे तुम ले चलो। नवमी की सुबह से ही चुन्नी नहीं मिल रही थी। मैं उसे खोजते खोजते काजल के घर गई। वहाँ काजल भी नहीं था। तो क्या इसका मतलब दोनों भाग गए? मन ही मन मैं बहुत खुश हुई। बेटी के खो जाने के दुख से ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की थी कि वह इस नरक के जीवन से बहुत दूर भाग गई। अगर एक बार भी उसने मुझसे कहा होता कि वह काजल के साथ जाएगी तो क्या मैं उसे बाधा देती? अरे मैं तो उसे इस बंद पिंजड़े से उड़ जाने के लिए द्वार खोलने में मदद ही करती। मैं इस आशंका के साथ घर तो लौटी। एक व्यक्ति की खुराक कम तो हुई, पर भूख लगने पर वो कैसे खाना मांगती थी, बहुत याद आएगी। क्या मैं नवमी के दिन सबके मुंह में भात दे पाऊंगी? खैर, 2 मुट्ठी चावल 3 लोगों के लिए काफ़ी होगा। खाना पकाकर तीनों खाने बैठे ही थे कि अचानक दरवाजे पर आहट हुई। दिल ने कहा, कहीं अमिताभ तो नहीं आया? दौड़कर दरवाज़ा खोला, पर वहाँ देखा कि अमिताभ की जगह थाने के छोटे बाबू खड़े हैं। उन्होंने कहा, मुझे एक बार थाना जाना पड़ेगा। पर क्यों छोटे बाबू? देह शनाख्त करना होगा। किसका देह? इतना कुछ पता नहीं, आने बोला है, आओ। इसलिए सब आते हैं और किस लिए जाते हैं। मेरे नसीब में तो अन्न नहीं जुटा। पति और ननद को खाना देकर मैं थाने चली गई। थाने के कांस्टेबल और बड़े बाबू मुझे ठंडा घर की ओर ले गए। बत्ती जलाने पर मैंने देखा स्टेचर के ऊपर सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ मेरा अमिताभ हमेशा हमेशा के लिए सो रहा था। चलो, मेरा बेटा आज घर तो आया। पता चला मेरा बेटा कॉलेज यूनियन चुनाव की लड़ाई में शहीद हुआ है। अपने साथ साथ वह ट्यूशन फीस, कॉलेज फीस भी कम कर गया। অনিমার কথা শুনতে শুনতে চোখের কোণে জল ভরে এলো। যে অমিতাভ তার একমাত্র ভরসার স্থল ছিল, আজ তাকে এভাবে শুয়ে থাকতে দেখেও অনিমা বুক ফাটা চিৎকার করে কাঁদতে পারিনি, কারণ তার ছেলের দাহ সৎকারের পয়সাটুকুও তার কাছে ছিল না। তারপর বাড়ি এসে সে খুব কাঁদে, খুব। এক এক করে বাড়ির সবাইকে ধারালো বঁটি দিয়ে খুন করে নিজেও। কথাটা বোঝার পর বাস্তবে ফিরে আসতে দেখি, কোথায় কোথায় অনিমা? কেউ কোথাও নেই, কেউ কোথাও নেই। অনিমা লক্ষ্মীমা হয়ে
চরাচরে মিলিয়ে গেছে। দূরে বাজছে বিসর্জনের বাজনা। শুভ বিজয়া দশমী। আজকের মতো গল্পের দর্পণের সময় শেষ। আগামী পর্বে নতুন গল্প নিয়ে হাজির হব আপনাদের সামনে শনিবার রাত 10টায়। ততক্ষণের জন্য একটু বিরতি। নানা স্বাদের নতুন নতুন গল্প শুনতে চাইলে আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন। সবার আগে নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য বেল আইকন ক্লিক করুন। বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন আর অবশ্যই লাইক আর কমেন্টস দিতে কিন্তু ভুলবেন না।